Assalamu alaikum ji, and a very warm welcome to all of you who have joined today with us for this webinar of IBLM exam 2025. So let me briefly introduce myself. My name is Dr. Zunaira Basit, and I'm a medical doctor with experience in pediatrics and histopathology. I discovered lifestyle medicine when the first exam was announced in Pakistan in 2021 in collaboration with Rifa University. I cleared my exam and I was in the first pioneer batch of lifestyle medicine. Since then, I'm associated with Pakistan Association of Lifestyle Medicine and IBLM exam department. Presently, I'm working as a director for IBLM exam department, and I have been coaching the IBLM exam candidates since 2022. 4 batches have given the exam since, and that's all about me. So we have today with us our very beloved Dr. Shagufta Feroz, who is the pioneer of lifestyle medicine in Pakistan. Very warm welcome to you, madam. And Assalamu alaikum. Dr. Shagufta Feroz is the founder, chairperson, Pakistan Association of Lifestyle Medicine. She is the director of Rifa Institute of Lifestyle Medicine, board member, International Board of Lifestyle Medicine, council member of Global Positive Health, and founder Swipe for Healthy Lifestyle program. Madam, Assalamu alaikum aapko. She'll be here. जो भी आप लोगों के questions and answers होंगे, she'll going to help you answer that question and guiding us all here. So we also have Dr. Abira Zainab with us. She's the Deputy Director of IBLM Department, PALM. Assalamu alaikum, Dr. Abira. Walaikum assalam. Thank you for joining us. And we have Dr. Sadia Fazal. She is a diplomat of International Board of Lifestyle Medicine and SWIPE registered physician. And she's doing an online clinic in person in Pakistan and also collaborating with the dermatology clinic for lifestyle as lifestyle medicine physician. So she's also going to help us answer your questions. So I will just briefly take you through the journey of lifestyle medicine in Pakistan and how this IBLM exam started and what is the situation now. So lifestyle, let me tell you a brief about lifestyle medicine, how we are going to define this field. This is the use of evidence-based lifestyle therapeutic intervention, including whole food, plant-based, predominant eating pattern, regular physical activity, restorative sleep, stress management, and avoidance of risky substances, along with positive social connection as the primary modality, which is delivered by clinicians trained and certified in this specialty. So this is the brief definition of lifestyle medicine. Lifestyle medicine, aapne suna hoga, it's not something very new. It's always been there, but we are not, the medical faculty is not very trained in implementing this lifestyle into the life of patients, or jo chronic disease burden hai, that is increasing day by day. So basically this lifestyle medicine has always been a foundation of conventional medicine, and all the clinical practice guidelines for the top lifestyle related chronic diseases support lifestyle medicine as the first line of treatment before medications. A brief history about the lifestyle medicine exam. American College of Lifestyle Medicine was founded by John Kelly in 2004 in Loma Linda University as a department. Later on, a JAMA article came in 2010, which described the competencies of the physicians who are going to practice lifestyle medicine. Then American Medical Association resolution came, and IBLM and ABLM, American Board of Lifestyle Medicine and International Board of Lifestyle Medicine, was formed in 2015. First certification exam was conducted in 2017, and then later on a scheme of maintenance of certificate was introduced in 2019. So this is a brief history about lifestyle medicine, how this college was made and how this exam started.
So very this is the data from 2017 till 2019. So there are 65 countries which are representing physician number. Now it's more than 3,500 and maybe 6,000 and more after this year. And professional and practitioner till last year was 1,500. So this data is from 2019. So many countries have developed their sister organization. Pakistan Association of Lifestyle Medicine is also one of them. Right now, there are in 2025, 19 countries will conduct this exam. International Board of Lifestyle Medicine, what is it? So we call it the exam, the same American College of Lifestyle Medicine when conducts the exam in America and Canada, it's called American Board of Lifestyle Medicine. But in the rest of the world, when ACLM conducts the exam, there's an association called International Board of Lifestyle Medicine. So all the exams which are conducted outside of US comes under the International Board of Lifestyle Medicine. But it is the same exam and everything is same. It's only the administration thing, which is that's why it's divided between US and rest of the world. So IBLM is going to set the standard and maintain standard of assessment and credentialing of physicians, LM globally. It will differentiate between the evidence-based LM professionals and non-evidence-based LM professional. It will send LM benchmark and coordinate the certification efforts of the continental LM organization. And it co-issue LM certifications along with the regional LM organizations and thus provide a global recognized seal of approval. You can go on this website, iblm.org, and you can read further if you want to know more about the International Board of Lifestyle Medicine. So why would you give this certification exam? So what it is going to benefit you? The transformative benefits of lifestyle medicine certification helps you to prevent, arrest, and reverse chronic diseases, gain expertise in using scientific evidence-based treatment modalities to address chronic conditions. It will have a professional recognition and be acknowledged by peers, patients, and employer for specialized knowledge and skills in lifestyle medicine. There is an official endorsement, seal of approval from the international and your national lifestyle society. And you are going to join a prestigious community and respected network of professionals who are diplomats of International Board of Lifestyle Medicine. A little brief, So requirements for the IBLM exam. For the physicians, medical doctors, you are required to complete a curriculum which is worth 30 hours of online non-CME, which is, I'm going to tell you after that about this curriculum. It is available on the American College of Lifestyle Medicine website, and you are going to go on that website, make your account and purchase this curriculum, go through the online curriculum, do the questions, and obtain a completion certificate. That is number one prerequisite for the physicians. And then 20 hours of in-person CME. This requirement will be fulfilled by attending the international conference, which we will conduct along with the exam. And then there is a single case study, which you are going to provide. There is a format which will be provided later. And after this exam, you will be called diplomat of IBLM, and you can write this nomenclature along with your name. And for the allied health professionals, the requirement is master's or PhD minimum. 30 hours of online non-live CME, the same as for the physicians, and 20 hours of in-person CME, which will be same fulfilled by the international conference. And after this, obviously, you are also going to put this DIP IBLM along with your name.
The 30 hours online curriculum I talked about, this is the one which we recommend getting. There are few other also today. Now the latest is the 4th edition. You are going to purchase this curriculum yourself from the website. The address is given here, and the price is $499 US. The 5th International Board of Lifestyle Medicine exam date जो decide हुई है, that is 28th of September, and the conference would be around the same time, and the dates and details will be announced later. Exam format is online exam, जिस तरह which will be conducted on your laptop. एक सेंटर बनेगा जहाँ पे आप अपने कंप्यूटर्स लेके आएंगे, and this online exam will be conducted there. It's a 4 hours exam, online multiple questions, 150 stems for physicians and 120 stems for allied professionals. Regarding the exam fee, registration is $99 US. Exam fee is $999, and which is going to be deposited in PKR in the Palm account. The curriculum you have to purchase yourself from the ACLM website, which is $499. The fee for allied professional is registration is $49 and exam fee is $799. There is a maintenance. Once you clear the exam, there is a scheme called maintenance of certificate. Either this certificate will be valid for 10 years only. After that, there are two options. Either you sit in the exam or you sign the MOCs. MOC is the scheme in which you have to every year purchase 3 articles from the ACLM website, and you have to answer that questions and submit. That is an annual thing, and over the 5 years, collect 30 hours of approved CME and submit it once every 5 years. So आप जो conferences attend करेंगे उससे ये आराम से आपकी 30 hours पूरे हो जाएंगे. So no extra effort for that, but this annual thing where you have to purchase the articles and read and submit them by the end of the year. This is a compulsory thing every year for MOC. So if you are following this MOC pathway after 10 years, you don't need to do the exam again. If you cannot pass the exam, there is another chance, one chance you can reappear in the exam, and the fee is $100. So only one chance. So Palm arranges a course every year it's a preparatory course. It's an optional course, not compulsory. So I conduct this course every year. This time we have decided it is going to be a 16-week course starting in May till August. Classes will be on Sundays, 2 hours per week, and the price is given here. And the deadline for submission of fee is 30th April. We will rapidly go through the content. Sample question we are going to practice the sample questions. I'm going to help you with the case study, and there will be a mock exam a month before the final exam. Payment timeline is we are offering a 20% early bird discount if you register before 15th of February 2025, and but the final deadline is 31st March 2025, and the preparatory course payment deadline is 30th April, and it is starting in May. A little brief about this Pakistan Association of Lifestyle. आपको नीचे मैंने website का link दिया है. Kindly open this link and go through the association website. See the IBLM page. A lot of details are there. So this brief about this organization. It was the first international association Pakistan for lifestyle medicine, bringing a community of healthcare professionals from diverse fields and specializations, and working towards a preventive and therapeutic healthcare system through 6 pillars of lifestyle medicine already mentioned.
So this Palm Association is founded by Dr. Shagufta Feroz in 2016 and few of her coaches, and the association has become the member of Lifestyle Medicine Global Alliance in 2017. So that is all from my side. Thank you for listening to me. So we are here open for questions and answers now. And I would ask Dr. Shagufta if she wants to add something, and then we can go forward for the question and answers. Ji, Dr. Shagufta. जी मैडम, आप सुन रही हैं? Okay, I think we can take your questions now. Kindly आप hand raise कर लें या अपना mic खोल के you ask the question if you have any questions. Dr. Zanera, there is a comment in the comment box. उनको चाहिए registration की slide फिर से दिखा दें please. ये registration की slide आप aspirant group पे है, ये मैं पूरी share कर देती हूँ आपको. I can open the registration slide also. Payment timeline or the registration slide? This one? हिना फरहान प्लीज कंफर्म कीजिएगा. Can you please repeat the registration? इसमें dates आपने mention किए. जी उसका मैं देखना चाहती हूँ. Can you see वो please. the screen? जी, this one. Yes, this one. अच्छा, Thank मैं you. आपको बता देती हूँ, थोड़ा सा confusion होता है. There are two fees. एक fee है जिसको हम registration fee, exam fee कहते हैं, registration, which is $99, or the other fee is the exam fee. So we are giving a 20% discount on the registration fee if you submit it by 15th February, and then you can give the exam fee by 30th of March. Okay, but if you want to submit both, then you can do it by 31st March. That is the deadline. और एक क्वेश्चन यहाँ पे आया है कि जो प्रिपरेटरी कोर्स है उसके बारे में है, मैंडेटरी है शॉर्ट कोर्स लेना या नहीं. शॉर्ट कोर्स के बारे में रिव्यू मैं सजेस्ट करूंगी. डॉक्टर सादिया फजल हैं हमारे साथ, उन्होंने वो शॉर्ट कोर्स लिया था, वो आपको उसके बारे में रिव्यू बता सकेंगी. डॉक्टर सादिया आप हैं हमारे साथ? जी बिल्कुल जी. अस्सलाम वालेकुम ऑल. थैंक यू डॉक्टर नेहरा. मैंने ये शॉर्ट कोर्स लिया था. मैंने 2023 में आई हैव डन माय IBLM, और मैं ये शॉर्ट कोर्स जो प्रेटरी कोर्स है डॉक्टर ज़ुनैरा कराती हैं, इसको ज़रूर रिकमेंड करूँगी. फॉर द रीज़न कि एक तो आपके पास एक जिसे हम कहते हैं ना, एक डेडलाइन आ जाती है कि अच्छा ये हमने कोर्स कंप्लीट करना ही करना है इस टाइम तक. दूसरा ये होता है कि जो कन्फ्यूजन्स हमारी होती हैं वो क्लियर हो जाती हैं. एंड नंबर 3 के उस कोर्स के थ्रू आपका एक बहुत अच्छा ग्रुप बन जाता है प्रिपरेशन के लिए भी. क्योंकि यूजुअली जितने लोग हमने देखे हैं कि सारे यूजुअली ग्रुप स्टडीज और इस तरह के ग्रुप जो हैं वो इसी हमारे शॉर्ट कोर्स के ग्रुप के थ्रू ही बने थे. और डॉक्टर ज़ुनैरा बहुत हेल्पफुल रहती हैं. वो जब भी कोई भी आपका मसला होता है उसे इजीली आप सॉल्व कर लेते हैं, हर वक्त अवेलेबल होती हैं. दूसरी चीज़ ये है कि आपको एक केस स्टडी जो कि सबमिट करानी होती है उसमें भी आपकी हेल्प की जाती है. तो आई वुड रिकमेंड टू टेक दिस शॉर्ट कोर्स. वैसे ही तो ये ऑप्शनल है लेकिन बहुत बेनिफिशियल है. जी, हमारे पास माशाल्लाह जब से डॉक्टर ज़ुनैरा का ये कोर्स स्टार्ट हुआ है, रिजल्ट की परसेंटेज जो है वो काफ़ी इम्प्रूव हुई है. और मैम ने भी हमें फिर से ज्वाइन कर लिया हुआ है. डॉक्टर ज़ुनैरा, आप मैम से कुछ पूछना चाह रही थी? अच्छा, मैं थोड़ा सा कुछ ऐड मैडम प्लीज आप करते हैं. हाँ, मैं इस कोर्स के बारे में सिर्फ इन लोगों को ये गाइड करना, अपना एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ. जब ये शुरू हुआ था, पहला जो एग्जाम था, उस वक्त ये फैसिलिटी नहीं थी. पाकिस्तान तो सेंटर बना ही नहीं थे ना. तो मुझे अमेरिका एरिजोना टूसॉन में पहला एग्जाम हुआ था,
और मुझे जो इसका डायरेक्टर है स्टीफान, उसने कहा तुम अपीयर हो जाओ। और मैंने भी समझा, जैसे आप शायद आप लोगों के जहन में भी ये बात आएगी, मैंने भी समझा हमें सारा कुछ तो पता है, ये लाइफस्टाइल मेडिसिन कौन सा बड़ा सब्जेक्ट आ गया, मुझे पता है। ओवर कॉन्फिडेंट होके मैं पहले बैच में अपीयर हुई और मैं फेल हो गई, ठीक है। मुझे अंदाजा ही नहीं था कि ये इतना इन डेप्थ सब्जेक्ट है, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था। और उस वक्त तक कोई कहीं पे इसकी ट्यूटरिंग नहीं हो रही थी। फिर जब पाकिस्तान सेंटर बना तो मैंने रिक्वेस्ट की, अमेरिका बल्कि रिक्वेस्ट की, और मैंने कहा कि ये नहीं कर सकते, बिकॉज नहीं आइडिया होता, क्योंकि जो एमसीक्यूज होते हैं वो ज़्यादातर सिनेरियो बेस्ड होते हैं, या आपको उसकी स्टेम जो होती है वो इतनी बड़ी होती है कि एमसीक्यूज आपको अगर समझ नहीं आएगी स्टेम तो आप नहीं कर सकेंगे। फिर मैंने फर्स्ट टाइम रिक्वेस्ट की स्टीफान को कि हमें कोई, हमारे पहले बैच को कोई आप हेल्प करो और कोई दो जो ट्यूटरिंग के लिए करे। तो फिर उसने हमें, योहान वाज फ्रॉम फिलिपीन, या ही वाज फ्रॉम फिलिपीन, तो योहान ने इनको कोर्स कराया। मैंने अटेंड किए उसके काफ़ी लेक्चर्स को, जो उसने रिव्यू इनका सारा कुछ किया, बट आई वाज नॉट सेटिस्फाइड ना। उस बैच में चूंकि जुनैरा ने क्लियर कर लिया था, तो जुनैरा को फिर हमने दिया ये ड्यूटी, और ये माशाल्लाह इनके कराने के बाद से हमारा 100% रिजल्ट भी आया है हमारे एक बैच का। तो इसलिए रिकमेंड कर रहे हैं, क्योंकि मेरा दोनों करने का कोर्स और बगैर पढ़े हुए करने, दोनों चीज़ों का एक्सपीरियंस है। ठीक है जी, और क्या आप कुछ पूछ रही थी जुनैरा? जी मैडम, बस आपने शेयर कर दी। मैं ये इनिशियली आपको कह रही थी कि आप कुछ ऐड करना चाह रही हैं कुछ हाँ एग्जाम के बारे में, और जी आफ्टर द एग्जाम बहुत से क्वेश्चंस है कि इसके बाद हम क्या कर सकते हैं और हमें किस तरह बेनिफिट करेगा, क्लिनिकली कैसे बेनिफिट करेगा, ये ये क्वेश्चन। इनके क्वेश्चंस हैं तो ये कर लें, ये डायरेक्ट क्वेश्चन करें ना, इनका क्या क्वेश्चन है फिर मैं बताती हूँ जी, क्या। वी वुड लाइक यू टू स्पीक अप एंड आस्क द क्वेश्चन। हाँ हाँ जी, थोड़ा अपना बिल्कुल। ब्रीफ इंट्रोडक्शन भी कराएं, आप बताएं आप कौन हैं और आप सवाल पूछें। अनम्यूट कर लें अपने आप को, जो भी बोलना चाहता है। जी अस्सलाम वालेकुम, एम आई ऑडिबल? जी जी। जी। मेरा मैडम से सवाल है कि लाइक आई एम प्रैक्टिसिंग एज अ डायबिटीज स्पेशलिस्ट एंड फैमिली फिजिशियन। तो वंस वी पास आउट द एग्जाम, तो हाउ दिस वुड हेल्प अस इन आवर प्रैक्टिस इन अ वे कि क्या हम इसकी प्रैक्टिस किस तरह से शुरू कर सकते हैं, और लाइक कर भी सकते हैं नहीं कर सकते, और वी नीड सम इंटर्नशिप और समथिंग मोर लाइक दैट। क्योंकि स्टिल आई फील के इवन अगर हम एग्जाम निकाल भी लेते हैं तो स्टिल क्लिनिकल internship is necessary to come into practice into this field. और सेकेंडली अगेन के मेरा नहीं ख्याल कि अभी पीएमडीसी हमारी इस चीज़ को इतना जल्दी एफिलिएट करेगी। तो उसके हवाले से भी थोड़ा सा प्लीज गाइड कीजिएगा कि उसका फ्यूचर में क्या स्कोप है। थैंक यू। ठीक है, देखें डॉक्टर साहब, बात यह है कि लाइफस्टाइल मेडिसिन के जो कंपोनेंट्स हैं ना, आप अगर एक प्रैक्टिशनर हैं तो आपको ये पता है कि द पिलर्स ऑफ द लाइफस्टाइल मेडिसिन वी हैव बीन टॉकिंग विदाउट नोइंग दैट वी वर टॉकिंग अबाउट लाइफस्टाइल मेडिसिन। पहले दिन पहले मरीज ने मेरे से खुराक का परहेज पूछा था और मुझे कुछ नहीं पता था कि ये क्या होता है। इसीलिए लाइफस्टाइल मेडिसिन के जो 6 पिलर्स हैं उनको फाउंडेशनल यानी मेडिसिन कहा जा रहा है, या बेस कही जा रही है हर बीमारी की। एंड इट इज द बेस ऑफ एवरी पैथोलॉजिकल स्टेट जो बॉडी में शुरू होती है। ठीक है, या स्लीप डिप्रिवेशन होती है, या खुराक गलत होती है, या स्ट्रेस होता है, ये सारे पिलर्स होते हैं। पहली बात तो ये है कि आपकी जो प्रैक्टिस है वो उसकी क्वालिटी इंप्रूव करेगी। आपके अंदर, आपके पेशेंट्स में ड्रग रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, आपके पेशेंट्स में ड्रग के साइड इफ़ेक्ट्स कम हो जाएंगे। जैसे मैं करती हूँ तो मैं कीमो के साइड इफ़ेक्ट्स, बाय मॉडिफाइंग द लाइफस्टाइल, अपने पेशेंट्स के कीमो के साइड इफ़ेक्ट्स को बहुत मिनिमाइज कर देती हूँ, मरीज कंफर्टेबल हो जाता है। एक तो ये बात है। दूसरी बात आपने की है कि इसका क्या बेनिफिट क्या होगा हमें जाके। अगर मैं आपको बिल्कुल फ्रैंकली कहूँ तो कोई बेनिफिट नहीं होगा। लेकिन जब मैंने किया था लाइफस्टाइल मेडिसिन के अंदर, मैंने अमेरिकन कॉलेज में जाने से पहले मैं हार्वर्ड गई थी 2013 में। जब मैं वहाँ से एक सर्टिफिकेशन करके आई थी तो मुझे कुछ नहीं पता था मैं क्यों कर रही हूँ, लेकिन आज मैं पाकिस्तान को ग्लोबली रिप्रेजेंट कर रही हूँ। आप लोग जो है, यू आर फॉर्मिंग अ पाइनियर ग्रुप, आप एक कोर टीम का हिस्सा बनते चले जा रहे हैं।
लाइफस्टाइल मेडिसिन को दुनिया ने एक्सेप्ट कर लिया है। कई मुल्क हैं, जैसे ब्राज़ील है, मलेशिया है, फिलीपीन है, इवन अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ हैं, दे हैव स्टार्टेड अडॉप्टिंग दिस। डब्ल्यूएचओ भी सेल्फ केयर की बात करने लग गया है, उसने लाइफस्टाइल मेडिसिन पे भी एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया है अभी। तो चूंकि बिल्कुल एक नया कॉन्सेप्ट है ना, इट वाज, यानी मेडिकल डॉक्टर को समझना मुश्किल हो रहा है कि हमें तो ये सारा कुछ पता है, क्योंकि हम सब ये समझ रहे हैं कि हमें ये सब कुछ पता है। इस कंफ्यूजन में इसका डिले हो रहा है। पाकिस्तान में अगर मैं आपको बताऊं तो हम कोई 2020 से पढ़ा रहे हैं, अपने यूनिवर्सिटी में भी पढ़ा रहे हैं। तकरीबन 40 के करीब इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ के हमने मास्टर ट्रेनर्स तैयार किए हैं। तो आप जब करेंगे इसकी, तो आप एक तो सर्टिफाइड होंगे, आप एक ग्लोबल कम्युनिटी का हिस्सा बनेंगे। दूसरी बात यह है कि आपका एक बहुत बड़ा एक आपका एक क्रेडेंशियल ऐड होगा, जिसकी ज़रूरत आई थिंक विद इन शॉर्ट पीरियड, क्योंकि गवर्नमेंट एंड आर्मी इज़ वेरी वेरी मच इंटरेस्टेड इन incorporating lifestyle medicine into their medical colleges also। और हम लोगों ने तो मेडिकल करिकुलम में भी डाल दिया है। एक और मेडिकल कॉलेज यहाँ खुल रहा है इस्लामाबाद में, इसका बहरिया यूनिवर्सिटी का मेडिकल कॉलेज है। दे आर फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग दे आर इंटरेस्टेड टू एम्बेड दिस लाइफस्टाइल मेडिसिन इनटू देयर सिस्टम। तो इसलिए आप लोग अभी आप सब्र से बैठेंगे, मैं ये नहीं आपको कह सकती कि जी जैसे ही आपने एग्जाम किया लिया आपको लोग आपके पीछे आएंगे, ऐसे नहीं है। अमेरिका में भी जो एलएम की फिजिशियंस की जो जॉब्स क्रिएट हुई हैं, वो कुछ टाइम लगा है। अब उनकी आप वेबसाइट पे देखें, आप देखें कितनी सारी ऑनलाइन और इन पर्सन जॉब्स होती हैं लाइफस्टाइल मेडिसिन फिजिशियन के लिए। ठीक है। Assalamu alaikum. I'm Dr. Shan. I'm a family physician. FCPS किया हुआ है। So basically मुझे यही इशू होता है whenever I'm counseling my patients कि बोलते तो ये 15 minutes, I mean half an hour walk or whatever. लेकिन can you give a clinical context in which it's effective? Like what exactly will I be able to add on in my clinical practice by doing this? देखिए, अगर तो आप ये समझ रही हैं कि आपकी ये लाइफस्टाइल ऐड करने से आपकी कोई प्रैक्टिस पे चेंज आएगा, तो प्रैक्टिस या आपके क्लाइंट्स में चेंज शायद अभी नहीं आएगा। मैं जाहिर है मैंने भी फैमिली मेडिसिन किया, बाद में न्यूट्रिशन और ये सारा कुछ किया। तो अब मैं 15 साल से एक ड्रग लेस क्लिनिक रन कर रही हूँ, वेयर नाउ पेशेंट्स कम टू मी फॉर देयर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। तो मैंने एक एग्जाम्पल सेट की हुई है, और जिन्होंने मेरे साथ फर्दर और इसके अंदर क्लिनिकली सीखा है, वो सारे रजिस्टर्ड फिजिशियंस हैं। उनकी भी प्रैक्टिसेस सिर्फ लाइफस्टाइल मेडिसिन के ऊपर भी चल रही हैं। क्योंकि अगर आपके पास एक कोई पेशेंट रेफर होके आता है जो किसी प्रिस्क्रिप्शन पे है, और आपके पास वो आता है और वो कहता है कि आई नीड माई लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, तो आपके पास वो टूल्स होंगे, वो स्किल होगी, जिसकी बेसिस पे आप उस पेशेंट का लाइफस्टाइल मॉडिफाई कर सकते हैं। और आजकल पेशेंट इज़ वेरी अवेयर। ठीक है। गांव से पेशेंट उठ के आता है और वो जब कंसल्टेशन पे मुझे कहता है कि डॉक्टर साहब दवाइयाँ बहुत खा ली हैं, अब ज़रा खुराक हमारी ठीक कर दें, हमें बताएं कि हम क्या ज़िंदगी, बाज उर्दू में कह रहे होते हैं, हमारा तरीका ठीक नहीं है सुबह से लेकर रात तक, वो ठीक करें। सो लॉट ऑफ अवेयरनेस इज़ देयर। उसमें मेरा भी कुछ रोल है, ये मेरी जो पूरी टीम है इन सब का बड़ा रोल है। हम सब लोग बहुत काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तमाम हम काम कर रहे हैं। और लाइफस्टाइल मेडिसिन पाकिस्तान में लोग जानते हैं। और आप अपनी प्रैक्टिस की को डिवाइड भी कर सकते हैं। मैंने इस तरह ही किया था शुरू में कि एक मेरा फैमिली मेडिसिन क्लिनिक था और एक मैंने लाइफस्टाइल मेडिसिन की अलग कंसल्टेशन शुरू कर ली थी। और अब मैं टोटल वर्चुअली कर रही हूँ कोविड के बाद से, और बहुत आसान है लाइफस्टाइल मेडिसिन चलाना। वर्चुअली बहुत आसान हो गई है ज़िंदगी, इतना मुश्किल नहीं होता। बट यू विल लर्न ग्रेजुअली। ये मतलब ओवरवेलमिंग होगा अगर हम आपको सारा कुछ अभी बताएं, लेकिन ऐसे नहीं है कि आपको थोड़ा सा इनोवेटिव होना चाहिए। थोड़ा सा इनोवेटिव होना चाहिए, तो आप बहुत सारा, इसकी बहुत सी सब डोमेन्स हैं जिनके अंदर आप काम कर सकते हैं। जी मैम, इफ आई माइट ऐड, जी ये आपको नॉलेज देगा, जिसका स्किल एस्पेक्ट आते आते आता है। जैसे मैम ने कहा कि 15 साल मैम ने ड्रगलेस क्लिनिक चलाया, लेकिन उससे पहले के 15 साल मैम के जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ट्रांजिशन में भी गुजरे हैं।
तो इट्स अप टू यू कि आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस कितनी ज्यादा इससे बेहतर होती है, स्किल आते आते आती है, आपके हिसाब से आप उसको सेट करते हो। जी, थोड़ा सा मैं भी ऐड करना चाहती हूँ कि आप लोग जो है अमेरिकन कॉलेज की वेबसाइट खोलें और वहां पे देखें कि अमेरिका में, यूएस में, दुनिया में अब लेटेस्ट क्रॉनिक डिजीजेस को ट्रीट करने का क्या ट्रेंड है। तो अगर आप थोड़ी सी आपको अवेयरनेस हो और थोड़ा सा आप इसके बारे में पढ़ें तो द वर्ल्ड इज चेंजिंग and chronic diseases ka first line of treatment is the lifestyle modification, which obviously you're going to learn in this course. आप skills learn करेंगे कि कैसे आपने modification करनी है, and people are going, the world is changing and people are going towards no medicine and lifestyle change. तो it's कोई ज्यादा दिनों की बात नहीं है, it may be an year or two कि ये this is going to take over. And recently I saw पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो डायबिटीज रिमिशन कर रही है थ्रू लाइफस्टाइल, और कोई वो उनका वेबिनार मैंने एक यूट्यूब पे वो उनका चलता है, वो आते हैं वेबिनार्स करते हैं। देयर आर 500 पेशेंट्स वो देयर कि वो उनका वो सिस्टम जूम का नहीं चल रहा था, उनको अपने लोग निकालने पड़े। इट्स अ बिग सिस्टम जो वो रन कर रहे हैं, रिवर्सिंग लाइफ डायबिटीज एंड प्री डायबिटीज थ्रू लाइफस्टाइल। सो ये तो इट्स अ लेटेस्ट ट्रेंड जो इट्स कमिंग, और सारी दुनिया में तो आ गया है, पाकिस्तान में आने वाला है। तो आप पायनियर्स होंगे इफ यू लर्न दीज स्किल्स अहेड ऑफ अदर्स, तो डेफिनेटली हर बंदे का स्कोप है। जी, मैं भी इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी। मुझे 1 साल हो गया है, मैं लाइफस्टाइल मेडिसिन IBLM के बाद अपनी प्रैक्टिस कर रही हूँ। उसमें यही है कि जिस अभी डॉक्टर साहिबा ने क्वेश्चन किया ना कि 15 to 30 मिनट्स एक्सरसाइज का तो पता है, लेकिन किस तरह चेंज आएगा। ये करने के बाद आप उनको उनके इंडिविजुअली उनके हर पेशेंट के हिसाब से उनको बाकायदा एक प्रिस्क्रिप्शन एक्सरसाइज का दे सकेंगी। और जैसा मैम ने कहा ना, अभी आप बड़ा ओवरवेलमिंग हो जाएगा अगर सब कुछ बता दिया जाए तो। जितनी इसकी सब डोमेन्स हैं उसके पर्टिकुलरली हर किसी का टूल एंड एवरीथिंग आपके हाथ में होगा और आप उसे देखेंगे। मैं खुद एक डर्माटोलॉजी क्लिनिक में भी कर रही हूँ, और जो 60 to 70% डर्माटोलॉजी की डिजीजेज है उनमें जो आप कह लें कि 70% to 80% इफेक्ट जो है वो लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ आ रहा है, जो मैं वहाँ पे जाके उनको देती हूँ। और 1 साल में मेरा, जिस आप कह लें कि अगर काम के हिसाब से देखें तो वो एक बहुत अच्छा मेरा एक अच्छा रनिंग क्लिनिक है जो कि इफेक्टिवली काम कर रहा है। तो ये मैंने ऐड करना था उसमें। थैंक यू डॉक्टर सादिया। अफशां शाहिद, आपका हैंड रेज है, आप प्लीज अनम्यूट कर लें खुद को। अच्छा, हो गया मेरा ख्याल है आपके जो भी क्वेश्चन था उसका आंसर। अच्छा, मैं ये कहना चाह रही हूँ, अभी डॉक्टर जुनैरा कह रही थी कि पाकिस्तान में आ जाएगा। पाकिस्तान में आ गया हुआ है आपको, चूँकि मैं उन लोगों के साथ इन टच भी हूँ। कुछ लोगों को, जैसे डॉक्टर ताहिरा हैं, उनको जो बहरिया यूनिवर्सिटी गई हैं तो उनका जो एज था, दो शी वॉज अ प्रोफेसर ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन, बट द एज वॉज दैट शी वॉज IBLM सर्टिफाइड। और उसकी वजह से उनके प्रिंसिपल ने उनको ये सारा कुछ कहा है कि आप डिपार्टमेंट पे काम करें। इसी तरह और भी मतलब कई हैं हमारे साथ जिन्होंने, जिनकी यूनिवर्सिटीज़ में लाइफस्टाइल मैनेज, वो लोग काफ़ी इंटरेस्टेड हैं। तो एकेडमिक्स की साइड पे लोग इंटरेस्टेड हैं। हमारे यहाँ इस वक्त हमारी जो PMDC है वहाँ पे भी चल रही है एप्लीकेशन वगैरह, हमारी वहाँ पे पहुँची हुई है। आपको पता है गवर्नमेंट ऊपर नीचे होती रहती है तो उससे कुछ डिले हुआ है। और ये डॉक्टर सबा मसूद का बिरा लिख रही हैं, ये जो नम्स यूनिवर्सिटी है वहाँ उनको बुलाया ही लाइफस्टाइल मेडिसिन की वजह से गया है। तो हमारे यहाँ इस वक्त जॉब्स क्रिएट हो रही हैं जो IBLM सर्टिफाइड लोग हैं। और लेकिन अभी यूनिवर्सिटीज़ और एकेडमिक साइड पे हो रही हैं। लाइफस्टाइल मेडिसिन क्लिनिक जो है वो लोग अपने लेवल पे पर्सनल चलाना शुरू हो गए हैं। मेरी डिज़ायर है कि हम हॉस्पिटल के अंदर भी इसको सेट करें और इंशाल्लाह अल्लाह करेगा वो भी जल्दी हो जाएगा। जी मैम, मैं ना एक्चुअली हमारा डायबिटीज़ मैनेजमेंट सेंटर है, तो मैं उनके साथ रिसर्च वगैरह में भी कोलैबोरेट करती हूँ और वहाँ
पे पब्लिक सेक्टर के पेशेंट्स हैं जिनको बिल्कुल लाइफस्टाइल का कुछ पता नहीं है, हम उनको बहुत बेसिक बातें थोड़ी थोड़ी करके बताते हैं। सो वहां से मेरा इंटरेस्ट लाइफस्टाइल मेडिसिन के अंदर हुआ। बट मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि आप जो कह रही हैं कि ये हम लर्न करेंगे, सो ये जो हम एक क्रैश कोर्स लेंगे उसमें ये सारी लर्निंग होगी, या मतलब how we are going to learn this about the depth of these 6 pillars and all the prescriptions and all the drug list management, ये मैं जानना चाह रही हूँ। ये जो इसका कंटेंट है ना, जो आप हम्म, एग्जाम का कंटेंट जिसकी फैसिलिटेशन डॉक्टर सुनैरा करेंगी, कंटेंट इज वेरी रिच कंटेंट। आप ओके, उसी में व्हाट इज लाइफस्टाइल मेडिसिन हमें नहीं पता, मैं आपको यही बता रही हूँ जी कि अभी जी, हमारे लिए इट इज गोइंग टू बी अ न्यू लर्निंग फॉर यू कि, हम्म, हम छोटी सी बात कह देते हैं कि भाई वॉक किया करें। क्यों किया करें? किस किस हम्म, सिस्टम से वॉक करें? जब तक आप देखें, हम जो डॉक्टर्स होते हैं, वी डेफिनेटली वांट साइंटिफिक बैकग्राउंड फॉर एनीथिंग टू बी कन्विंस्ड बाय ना। तो जब तक आपको हम्म, की डिटेल नहीं पता चलेगी, आप बोल नहीं सकेंगे और आपको रिजल्ट भी नहीं आएगा। मेरी अपनी ओके, मिसाल है, आई बिकॉज ऑफ प्रोलॉन्ग सिटिंग्स आई नेवर न्यू एट दैट टाइम, तो मेरा पीडल अडीमा था जो सिर्फ लाइफस्टाइल और समझने के बाद और वॉक शुरू करने से विदाउट एनी रीजन सेटल हो गया। हम्म। ठीक तो है। मैम वो जो रिफा वाला कोर्स है, फिर वो करने की उसमें एनरोल होने की जरूरत नहीं है अगर हम ये अमेरिकन बोर्ड वाला कोर्स ले लेते हैं तो? देखिए, ये जो है ना, ये 3 अलग अलग डोमेन्स हैं। जो अमेरिकन कॉलेज का सर्टिफिकेशन है वो आपको उठा के ग्लोबल लेवल पे लेके जाएगा एंड यू विल बिकम पार्ट ऑफ द ग्लोबल कम्युनिटी। ठीक है। एंड जो ओके, एक क्वेस्ट है ना मेडिकल डॉक्टर की अबाउट द एविडेंस, यू हम्म, विल गेट लॉट ऑफ एविडेंस। वो बात ही एविडेंस की करेंगे, लाइफस्टाइल जी, मेडिसिन। हमारी जो सर्टिफिकेशन है यूनिवर्सिटी में, उसमें चूंकि जो मैं काम करती हूँ जो कि पर्सनलाइज्ड लाइफस्टाइल मेडिसिन है, उसका भी मेजर चंक उस सर्टिफिकेशन में हमने डाला हुआ है, जिसमें हम पेशेंट हम्म, ऑब्जर्वेशन वगैरह भी कराते हैं। तो वो उसका हम्म, उसका नेचर डिफरेंट है। उसकी नेचर ओके, है वो भी पिलर्स पे ही बेस्ड, लेकिन उसको चूंकि अब मेरा जी, था तो मैंने यहाँ की नीड के मुताबिक उसको थोड़ा सा पर्सनलाइज किया। और ये कई मुल्कों में हुआ है इस तरह। ब्राजील में हुआ ओके, है, फिलीपीन में हुआ है। उन्होंने उसको अपने रीजन, अपने मुल्क के मुताबिक उन बेसिक नॉलेज को मॉडिफाई किया, जैसे हम लोग करते हैं मेडिकल में जो हम पढ़ते जी, हैं प्रैक्टिकली हम कैसे चेंज करते हैं। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच। मैडम ये जो मास्टर्स प्रोग्राम शुरू कराने वाले हैं रिफा यूनिवर्सिटी के अंडर, तो वो कब तक एक्सपेक्टेड है स्टार्ट होगा? जी, मास्टर्स प्रोग्राम जो है वो नॉट अर्लियर देन 1 ईयर, उसका 1 ईयर का टाइम है। और उसका सारा हमने वो तैयार कर लिया, एवरीथिंग इज रेडी। लेकिन अभी हम उसको शुरू नहीं करवाएंगे क्योंकि हम इंतज़ार कर रहे हैं। आपको पता है एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, तो वो सारा प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हमने कर लिया है। बट आई डोंट थिंक कि 1 साल से पहले हो सकेगा ना। तो जिस तरह से सर्टिफिकेशन कोर्स आप लोगों ने अभी रिसेंटली करवाया है हमें, तो दैट वाज कम्प्लीटली ऑनलाइन, तो मास्टर्स में भी अपॉर्चुनिटी हमें मिलेगी जो लोग दूसरे शहर से हैं कि वो ऑनलाइन इसको कंप्लीट कर सकें? जो सर्टिफिकेशन है ना वो तो है ही ऑनलाइन, इसीलिए इसको हमने ऑनलाइन रखा था ताकि हम मैक्सिमम लोगों को ये इन्वॉल्व कर सकें। व्हेन वी स्टार्टेड दिस, फर्स्ट कोर्स इन रफा वाज इन लाहौर एंड इट वाज इन पर्सन। उसके बाद हमने मुसलसल इसको वर्चुअली रखा है ताकि लोगों को फैसिलिटेट कर सके ना, क्योंकि बड़ी इसके बारे में पीपल आर स्केप्टिकल, दे डोंट नो कि क्या है, कैसे आएगी, किस तरह हम हमारे साथ ये सिंक होगी। सो लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर देयर। तो इसलिए हमने थोड़ा आसानी पैदा करने के लिए इसको, जो हमारी यूनिवर्सिटी की है वो भी हमने उसको ये वर्चुअली रखा हुआ है। और ये भी अमेरिकन कॉलेज ने भी यही सहूलत दी है कि आपका आपके मुल्क में होना ये बहुत बड़ी सहूलत है। मैं बाहर जाके दे के आई थी, तो जो आप लोग पे कर रहे हैं प्रॉब्ली 5 टाइम्स ज्यादा मेरा खर्चा हुआ था उससे। तो मैडम ये मास्टर्स प्रोग्राम भी इसी तरह से ऑनलाइन आपका शुरू होगा, इसलिए कि अगेन जो लोग दूसरे शहरों में हैं, प्रैक्टिस में हैं, तो उनके लिए नहीं तो इन कांटेक्ट आना बड़ा मुश्किल है कि वो वहाँ आके अटेंड करें 2 साल के लिए। नहीं, मास्टर्स जो है ना वो अभी नहीं है ऑनलाइन।
अभी तक वो इन पर्सन ही है। हम लगे हुए हैं, उसको भी देख रहे हैं कि कैसे कैसे क्या चीज़ें उसकी, जाहिर है जो रिक्वायरमेंट्स यूनिवर्सिटी की भी हैं, आगे भी जो देखना होता है, एचईसी है, पीएमडीसी है, सारों की जो देखनी है चीज़ें, उस पर हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना बना सकें, बट इट इज़ इन पर्सन मोस्ट, यानी मेजर पार्ट ऑफ इट इज इन पर्सन। हो सकता है चंद चीजें ऑनलाइन हो जाए, वैसे नहीं है ना। जी, अस्सलाम और वालेकुम कोई क्वेश्चन? जी जी। मैडम। मैडम मैं सऊदी अरेबिया में होती हूँ दमाम में। तो अभी आपसे ही पता चला था ग्रुप में कि मैडम अभी सऊदी अरेबिया आई थी एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए। तो मैडम आप थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगी कि सऊदी अरेबिया में बिल्कुल अभी इसी तरह है जैसे आप बता रही हैं कि बाकी कंट्रीज़ में भी एलएम को हॉस्पिटल्स के लेवल पर उस तरह से रिकग्निशन नहीं मिली, लेकिन अगर हम करते हैं तो एज अ जीपी तो ज्वाइन कर सकते हैं ना हॉस्पिटल को? देखिए, सऊदी अरब में जो मैंने देखा, सऊदी अरब हमसे आगे है इस एग्जाम में, और वहाँ उन्होंने प्रॉबली हमसे कोई 2 साल पहले से शुरू किया हुआ है, और काफ़ी सारे, बहुत उनके ज़्यादा आईबीएलएम डिप्लोमेट्स हैं। अभी मैं एज अ प्रॉक्टर वहाँ गई थी, अभी जो उनका जो 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 ग्रुप था या बैच था, उसमें तकरीबन 39 के करीब डॉक्टर्स थे, शायद 2 उनमें अलाइड हेल्थ वाले थे। वहाँ के जो सऊदी सोसाइटी के जो प्रेसिडेंट हैं, डॉक्टर साले हिमसेल्फ बिलोंग्स टू अ वेरी इन्फ्लुएंशियल फैमिली। जिस तरह आपको पता है वहाँ की, पता नहीं मैं नाम भूल गई हूँ, अल 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 हजरी के हल जहरी करके, जिसपे बैंक्स भी हैं, तो ही बिलोंग्स टू दैट फैमिली। और वो अल उसी राजी मैडम। अल राजी, यस, अल राजी जी यूनिवर्सिटी भी है। तो वो जी। जो प्रोविंस है ना, कसीम कसीम जो प्रोविंस है, वो सारी उनकी, हम लोग अपने अपने मुल्कों में इसको स्टैब्लिश करने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, ये मैं आपको बता सकती हूँ। और मैं आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड बाय डॉक्टर साले कि उन्होंने अपनी फैमिली का इन्फ्लुएंस यूज़ किया, और एग्ज़ाम भी कंडक्ट यूनिवर्सिटी के अंदर हुआ। और वो मुझे कह रहे थे कि मैं बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो है ना वो शुरू कर रहा हूँ। फेलोशिप दे हैव ऑलरेडी, द कंटेंट इज़ ऑलरेडी देयर, मतलब वो बना चुके हैं अपना डॉक्यूमेंट फॉर फेलोशिप। तो वो अच्छा जा रहे हैं। आप उस सोसाइटी को ज़रा अगर करें, सर्च करें, तो आपको मिलेंगी उसकी डिटेल्स ना। जी मैडम, बस अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे ना थोड़ा सा इस तरह के रूल्स हैं कि नॉन सऊदीज जो हैं वो उनके प्रोग्राम्स के अंदर इनरोलमेंट नहीं करा सकते। अच्छा, उनके प्रोग्राम्स में नहीं करवा सकते? जी, वो सिर्फ वो सऊदी फेलोशिप करके डिक्लेयर करते हैं उस नाम को कि दिस इज ओनली फॉर सऊदीज। ओह। इनकी जिस तरह हमारा एफसीपीएस है, तो इन लोगों का भी जो इंटरनल मेडिसिन में पोस्ट ग्रेजुएशन कराते हैं उसमें इनके 5-6 साल पहले रूल आया है कि नॉन सऊदीज कांट एंटर देयर यूनिवर्सिटीज। आई सी, ठीक है, हाँ, वो फिर उनकी मर्जी है। लेकिन वो मेरे साथ खैर उनकी बात हुई थी, हो सकता है हम किसी लेवल पे कोलैबोरेट करें, पाम और उनकी एसोसिएशन का। इस किस्म की कोई बात उन्होंने की थी मेरे साथ ना, देखते हैं वो कब की बात है, अभी पता नहीं। लेकिन करंट यही स्टेटस होगा जो आप बता रही हैं आमना। जी मैम, थैंक यू। वेलकम। जी, और कोई क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैडम, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे प्रोफेटिक मेडिसन है या जो कपिंग है, वो मतलब प्रोफेटिक मेडिसन के अंदर उसके ऊपर बड़ा जोर दिया गया है, तो क्या ये इस डोमेन में आता है प्रिवेंटिव मेडिसन के अंदर, या कोई एविडेंस बेस्ड हम इसकी स्टडी करेंगे इस कोर्स के अंदर? जैसे मैंने जो सर्टिफिकेशन है उसके लिए इनरोल किया हुआ है आपके साथ, जो आई थिंक 28-29 से चल रहा है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं डॉक्टर फैसल। जी मैडम। प्रॉफिटिक प्रॉफिटिक मेडिसिन, कपिंग, ये ये लोग पढ़ा रहे हैं। सऊदी सोसाइटी जो है, वो अपने किसी, जैसे देखें, जिस तरह हमने यूनिवर्सिटी का एक शुरू किया है ना, जिसमें मैंने वो पर्सनलाइज्ड को एम्बेड किया है, इसी तरह सऊदी अरब ने बहुत सारे अपने लोकल कोर्सेज शुरू किए हैं, और उसमें प्रॉफिटिक मेडिसिन शामिल है। क्योंकि डॉक्टर साले के साथ मेरी बात हुई है, और मेरा ख्याल है मेरी यूट्यूब पे उनका मैंने इंटरव्यू भी डाला हुआ है, जिसमें वो बता रहे थे, बड़ी लंबी उनके साथ बात हुई थी मेरी। तो वो कर रहे हैं, वो बहुत कुछ, यानी वो उसको कोलैबोरेट करने लगे हैं, तिब्बे नबी को और
लाइफस्टाइल मेडिसिन को वो मिला के वो करेंगे, वो उनकी मर्जी है। जो अपने मुल्क में यू कैन डू एनीथिंग ना, तो दे विल बी डूइंग इट इन देयर कंट्री। यहाँ जो आप अगर हमारे सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं, तो आपको जो एक एज नजर आएगा वो ये नजर आएगा कि जो वेस्टर्न एलएम है बेशुमार आपको डेटा देती है, बट इट जनरली टॉक्स अबाउट जनरल लाइफस्टाइल मेडिसिन, यानी लाइफस्टाइल एज, यानी इन जनरल बात होती है, पर्सनलाइज नहीं होता। फर्ज करें मैं एक पेशेंट हूँ और मुझे कोई प्रॉब्लम्स हैं, तो एक्सरसाइज इज रिकमेंडेड फॉर मी, बट विच वन एट व्हाट टाइम, एंड उसका जो नुस्खा है, उसका जो फिट है ना सुनहरा, फिट है ना, फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, हाँ, जो उसका प्रिस्क्रिप्शन है लाइफस्टाइल मेडिसिन का, वो वेरी करेगा। उस वो हम सिखाते हैं इसके अंदर, हम पर्सनलाइज कर देते हैं इसको जब हम पढ़ाते हैं, जब सर्टिफिकेशन कराते हैं ना। ये डिफरेंस है हमारा, ये आपको खुद ही पता चलेगा। और इस पे बल्कि वो बड़ी इंटरेस्टेड है, बाहर से भी लोग इंटरेस्टेड हैं कि पर्सनलाइज, तो फिर हम भी सीखना चाहते हैं। तो हमें ये एज है पाकिस्तान को कि हम थोड़ा सा इसके अंदर उनके मुकाबले में बेहतर है, कि हम थोड़ा सा उसको नैरो डाउन कर देते हैं उस नॉलेज को। थैंक यू मैडम, जजाकल्लाह। जी, और कोई कोई क्वेश्चन पूछना चाहेगा? अहमद फौज साहब का माइक ऑन है, आप कुछ पूछना चाहते हैं? अहमद फौज सईद। ओके। ठीक है, कोई रजिस्ट्रेशन के बारे में आपके क्वेश्चंस, कोई फी के बारे में, टाइमलाइन के बारे में, एनीथिंग? अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर मामला हियर। मैंने जी पूछना था हाँ। ये मैंने पूछना था यार, इन्होंने री अपीयर करना है, तो उनके लिए वो जो ऑनलाइन कोर्स है वो लेना जरूरी है? जी डॉक्टर मावरा, आपने लास्ट ईयर हमारे साथ कोर्स किया हुआ है ना, आपके पास सारा कुछ है। आप उससे जो है क्या कहते हैं, प्रेपरेटरी कोर्स यू कैन प्रिपेयर योरसेल्फ। बट इफ यू थिंक कि आपको हमारे साथ दोबारा कोर्स करना है, तो इट्स कम्प्लीटली ऑप्शनल। ठीक है, ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप दोबारा करना चाहती हैं। ओके, थैंक। ठीक है जी, एनी मोर क्वेश्चंस? जी कॉन्फ्रेंस का, जी डॉक्टर शगुफ्ता, आप कॉन्फ्रेंस का बता देती हैं कि वो कब होगा? व्हाट इज द प्लान फॉर द कॉन्फ्रेंस? कॉन्फ्रेंस जो है वो टेंटेटिव डेट्स हैं, यानी एग्जाम की जो डेट मेरे ख्याल है 28 आपने बताइए ना, सितंबर। 28 सितंबर, जी वो IBLM की वेबसाइट पे यही है। जी यही बताइए, और उससे 2 दिन पहले की डेट, टेंटेटिव डेट्स हैं अभी। और कहाँ होगी? लाहौर में, इस्लामाबाद में, ये हमें एक आधा महीना लगेगा, प्रॉब्ली मार्च तक ये डिसाइड होता है कि हम कहाँ कर पाएंगे। तो उसी के साथ एग्जाम की जो वेन्यू है वो भी कनेक्ट होता है। जी ये कनेक्टेड होता है कि इसमें आप इस्लामाबाद में यूजुअली पिछले 4 सालों से तो उधर ही एग्जाम हो रहा है, कि एग्जाम आप देते हैं और साथ ही कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो ओवर द वीकेंड आपकी ये 3 दिनों में ये तीनों चीजें हो जाती हैं, एग्जाम और कॉन्फ्रेंस। क्योंकि आपके जो प्रॉक्टर आएंगे ना, वो ही बिकम्स एन स्पीकर फॉर द कॉन्फ्रेंस एंड ही प्रॉक्टर्स द एग्जाम। तो प्रॉबली मलेशिया से आएंगे, अभी फाइनल नहीं हुआ उनका भी। तो इस तरह होता है कि दूसरे मुल्क का कोई प्रॉक्टर आता है आपका एग्जाम को सुपरवाइज करने के लिए। अच्छा, मैंने पूछना है कि जो कॉन्फ्रेंस है ये कंपल्सरी होती है मेरे लिए, मैं आउट होगा या पिछली वाली कॉन्फ्रेंस कंटिन्यू होगी? आपका जो है ना मामला, ये आपका सारा कुछ पिछला काउंट होगा, क्योंकि ये तो आप एक अटेम्प्ट यानी रीअपीयर होंगी ना, तो आपने सिर्फ रजिस्ट्रेशन फीस देनी होगी और उसके अलावा कुछ भी नहीं। जी 36 मंथ्स पुरानी जो कॉन्फ्रेंस है ना वो काउंट हो जाएगी, आपकी केस स्टडी कॉन्फ्रेंस दोनों पुरानी काउंट होगी। बिल्कुल। थैंक यू।
जी डॉक्टर जुनैरा, एक ऊपर क्वेश्चन था कि केस स्टडी आपकी तरफ केस स्टडी से रिलेटेड था, उसका आंसर नहीं किया था हमने, मेरा ख्याल है बीच में। ये हिना फरहान ने किया था क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन था, सॉरी मैंने मिस कर केस दिया। स्टडी आपकी तरफ से होती है, मतलब जी हमको केस स्टडी, जी हाँ जी, केस स्टडी का पैटर्न अमेरिकन कॉलेज ने बनाया हुआ है विच इज अवेलेबल। उस जब मैं कोर्स करवाती हूँ तो मैं आपको गाइड करती हूँ, देन यू विल राइट द केस स्टडी, फिर उसको फर्स्ट ड्राफ्ट, उसका सेकंड ड्राफ्ट और थर्ड ड्राफ्ट बनता है उसमें करेक्शन करके, तो हम एक फाइनल केस स्टडी बनाते हैं। अमेरिकन कॉलेज वाले जो हैं वो किसी की भी स्टडी मंगवा सकते हैं और देख सकते हैं। सो वो प्री रिक्विजिट है, वो कंप्लीट करनी होती है केस स्टडी। if you're not taking the जो है क्या कहते हैं course, then you have to write case study yourself. It is compulsory and it's the prerequisite. चलिए मैडम, I think no more questions. Yeah, on your message. जी, I think we are done with the question answers. So thank you very much, Dr. Shagufta and Dr. Beera and Dr. Sadia for joining us, and good luck to all of you. So thank you very much. Allah Hafiz. Thank you. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Allah Hafiz.